All right. So first of all, to know your rights, है ना, ये समझिए आपका हथियार है, right? So you have these 6 fundamental rights with yourself. If you are in India, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ये आपको 6 फंडामेंटल राइट्स देता है. नाउ वेरी फर्स्ट पॉइंट, मैम हमको राइट्स देता कौन है? हु गिव्स अस राइट्स, है ना? क्या ये हमको सुप्रीम कोर्ट से मिला है? क्या ये हमको भारत की सरकार दे रही है ना? क्या ये हमको हमारे स्टेट की जुडिशरी दे रही है? किस केस में हम क्या गलती कर देंगे तो हमारा राइट छीन लिया जाएगा? क्या हम सिटीजन हैं तो हमारे पास ये राइट्स है? देयर कैन बी न्यूमरस डाउट्स, न्यूमरस क्वेश्चंस, एंड therefore we have all the rights mentioned in a very exhaustive manner, और बहुत अच्छे से उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन किया गया है. राइट नाउ, फॉर टू आंसर your question and your very common doubt, fundamental rights are granted to the citizens by the Constitution of India. आपको ये राइट्स किसने दिए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ने. एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. ठीक. सो yes, it is written, it's right, Sitikant, सही लिखा है. That's what I am telling you, because constitution reads what? Preamble में लिखा है ना, we the people of India give to ourselves this constitution. So people have given their power to the constitution. और उस बुक में जहां हमने अपना फेथ पूरा रखा है, वो बुक आपको बोलती है कि आपके पास कुछ मौलिक अधिकार भी हैं. यू डू हैव सम फंडामेंटल राइट्स एज वेल. So the first one is right to equality, which is Article 14 to Article 18. समझिएगा, हमने टू क्विकली हमने पढ़ा पार्ट 1, which was Article 1 to 4, that talked about the territory reorganization, changing the name of the existing states, है ना? Then we did part 2, which was about citizenship, from Article 5 to Article 11. And fundamental rights are part 3, that starts from Article 12. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा right to equality, Article 14. 14 से पहले दो rights, दो article 12 और 13. 12 gives the definition of state, अभी आगे हम पढ़ेंगे. Similarly 13, however जो फर्स्ट मेंशन है कि फंडामेंटल राइट्स आपको कौन से मिले हैं, वो 14 से. बट पार्ट 3 पूरा याद रखना है, फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35. That is part 3. Part 3, fundamental rights. After Article 18, you have 19 to 22, that is right to freedom of expression. How do you express yourself? You are free to express yourself. So right to speech, liberty, all of that. Then we have Article 23 and 24, that is right against exploitation. Right to freedom of religion, Article 25 to 28. Then cultural and educational rights, 29 and 30. And then finally, इन सारे आर्टिकल्स को स्ट्रेंथन करने वाला फाइनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, दैट इज आर्टिकल 32. नाउ एवरी ह्यूमन हैज राइट्स, और हम देखते हैं how in the western countries and how the issue of human rights have all the more become more important in the liberal scenario, है ना? तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये नाम भी फंडामेंटल, बेसिक, ह्यूमन उतना ही इंट्रिंसिक है. ठीक है? जैसे जीवन
हो जाने भर से कुछ राइट्स आपको आपके बर्थ से तुरंत मिल जाते हैं, such so important are the fundamental rights. Okay. However, there are some other legal rights also जो हमको पार्लियामेंट से मिलते हैं, the right that we get through an act of parliament. And I've also discussed about constitutional and non-constitutional rights. So the rights which are mentioned in the constitution are the constitutional rights, and which are not mentioned there are the non-constitutional rights, right? Now, what is the difference between a fundamental right and a other normal legal right? What is the difference? So, very easy to understand. अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है, अगर इन 6 फंडामेंटल राइट्स में से कोई भी फंडामेंटल राइट आपका वॉयलेट हो रहा है, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. अदरवाइज तरीका क्या होगा, आप जिस भी स्टेट में हैं आप पहले लोअर कोर्ट में जाएंगे, फिर लोअर कोर्ट जो डिसीजन लेगा वो आप अगर उससे सहमत नहीं है तो आप उसको चैलेंज करेंगे. देयर इज एन हायरार्की, राइट? बट इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट, बिकॉज दे आर सो इम्पोर्टेंट, you can directly go to the door of Supreme Court and Supreme Court will address the query. Supreme Court उसको मना नहीं कर सकता अगर वो फंडामेंटल राइट वायलेशन की बात है तो. ठीक है. However, अगर कोई और इशू है एंड यू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि पहले जाओ अपने स्टेट हाई कोर्ट में, बोल सकता है सुप्रीम कोर्ट. लेकिन फंडामेंटल राइट्स के केस में सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू लिसन टू द क्वेरी एंड सॉल्व इट. And in the case of other legal rights, we actually go to the lower courts first, and then the cases move forward. So the Supreme Court, you go to the Supreme Court in case of violation, which is Article 32, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, right to constitutional remedy. Now, nature of fundamental rights. Understand. Fundamental rights provides protection only against the action of state and not against the private individual, except in the following case. Now, अभी इसको समझने से पहले एक बात समझिए. Fundamental rights are the limitations of the state, and the rights are provided to you against the action of the state. समझते हैं, जरा इसको ध्यान से समझिएगा. ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी में आया है और बाकी स्टेट पीसीएस में भी, और इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी बहुत जरूरी है. समझिए, टेबल पे 2 लोग हैं. जब मैं कह रही हूँ कि मुझे ये 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, ये 6, तो ये 6 फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट मिले हैं, है ना? मैं कह रही हूँ मेरे पास राइट टू इक्वालिटी है, मुझे इक्वल ट्रीट करो. किससे कह रहे हो ये बात आप? कौन आपको इक्वल ट्रीट करे, है ना? आप कह रहे हो मेरे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है. किसको कह रहे हो आप कि मैं जो रिलीजन चाहे वो मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, प्रीच कर सकता हूँ? तो अंडरस्टैंड कि ये राइट्स किसके अगेंस्ट हैं, ये किसको लिमिट करते हैं. तो ये किसको लिमिट करते हैं? ये लिमिट करते हैं स्टेट को. ठीक है. ये स्टेटमेंट अक्सर यूपीएससी में आता है, दैट फंडामेंटल राइट्स आर द लिमिटेशंस ऑन द स्टेट एंड डीपीएसपीज आर द पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट. तो ये आपको क्लियर होना चाहिए. फंडामेंटल राइट्स हमें प्राइवेट इंडिविजुअल के नहीं बल्कि स्टेट के अगेंस्ट मिलते हैं. जो इंडियन स्टेट है वो बाउंड है आपको टू ट्रीट यू ऑल इक्वल बिफोर लॉ. वो बाउंड है टू गिव यू राइट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. वो बाउंड है टू गिव यू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. Okay, it is the state
That is what is mentioned here.